So hi, these are some important questions for series 8. So we'll discuss for these questions. In this we have 20 questions. So we'll further discuss these as questions. So the first question is what is the primary functions of clearing corporation? So you may know what is the primary function, settle the trades, whatever trades is happening. So the clearing corporation has to have settled that particular trades. Okay. So further questions. So question second, what does hedging? See, if you seen the previous whatever previous lectures or video I have uploaded, you have had like heard आप hedging क्या होता है? What does hedging primary aim to do in trading? So minimize the risk. Like you are taking a both side of positions. So put side and there's a call side position. So put side if you're taking out of the money, call side taking also some like 2 to 300 strikes is different, and then you're taking, so it will hedge your positions, you minimize your risk on the basis of more volatility in market. Question number third is when does an option have time value? You may understand that thing I think time value ATM, in the money option, at the money options, and OTM, out of the money options. So time value means before expiry. That is when time decay and premium decay is there. So in at the date of expiry, their decay is more. And you can check in sensible option chain that whatever theta decay is there, that is decay in price, and time decay also it will show in there also. So when does an options have time value? So before expiry like निफ्टी की expiry जो होती है उससे पहले टाइम जो टाइम वैल्यू होता है उसका डिके होता है, टाइम वैल्यू दैट इज कॉल्ड. क्वेश्चन नंबर 4, which term describe the right to sell an assets at a specific price before a certain date? So put options. If you're selling the right to sell an assets at a specific price before the certain date, so you have to know the put options. Okay. The next question number 5 is what does it mean if an option is out of the money? Out of the money means no intrinsic value. I think I have told in the video in the previous videos. So if the position is out of the money, the intrinsic value is 0. I think, yeah, 0. So question number 6, what defines intrinsic value of an options? So in the money, see the previous question, see what does mean in an options it out of the money, no intrinsic value, so in the money intrinsic value, that is in the money. Okay. Now next question is question number 7, which document outlines the terms and right of an options? So option contracts, like which documents outline the terms and rights of an option? That is option contracts. So the answer is this, option contracts. So how are the question? Next question: how are call options beneficial for investors? So right to buy. If the market is going upside, so कॉल ऑप्शन, अगर ऑप्शन आपको कॉल ऑप्शन लेना तो क्या करोगे, आप बाय करना है ना. अगर मार्केट अप जा रहा है तो कॉल ऑप्शन को आप बाय करोगे. सो राइट टू बाय. Question number 9 is which instrument is typically not considered an equity derivatives? Equity derivatives क्या होता है? Options भी है equity derivatives. कई equities derivatives options होते हैं, futures होते हैं, swaps होते हैं. But bond is not. Bond, it's not a equity derivative. So the correct answer is bond. नेक्स्ट क्वेश्चन है which derivative product is settled only in cash? कौन सा डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है जो कैश में सेटल्ड होता है? दैट इज इंडेक्स फ्यूचर. इक्विटी शेयर्स को आप कैश में नहीं कर सकते. कमोडिटी वारंट, फिजिकल फॉरवर्ड्स, यू कैन डू दैट. आप इंडेक्स फ्यूचर को कैश में सेटल्ड कर सकते हो. देन क्वेश्चन नंबर 11, इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग व्हाट इज लीवरेज ऑफ्टन यूज फॉर? देखो लीवरेज ये वर्ड
बहुत बड़ा वर्ड है। एंड दोज हु आर बिग बिजनेसमैन आर दोज हु आर कारपोरेट एंड दोज हु आर they have a business mindset, they are always using leverage means आप जो आम आदमी का पैसा है, बड़े लोग उस पैसे को लेकर अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। सिंपल थिंग्स। सो बिजनेस में आप अलग है, मार्केट में दूसरा है। सो लीवरेज मार्केट में जाएंगे तो इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग व्हाट इज लीवरेज ऑफ्टन यूज्ड फॉर, सो इंक्रीजिंग पोटेंशियल रिटर्न। आपको अगर लीवरेज यूज करना है तो आप पोटेंशियल रिटर्न को, जैसे आपने कुछ पैसा लगाया, अब आपको कम पड़ गया, लीवरेज लिया आपने, सो आप अपना पोटेंशियल रिटर्न बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which is a characteristics of a future contract। so आप ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट में NISM के सीरीज 8 में, कि अगर आप ये जो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडर्डाइज होता है, ना कि OTC मार्केट की तरह होता है। सो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इज डेरिवेटिव्स आर प्राइमरीली यूज फॉर व्हिच पर्पज, सो रिस्क मैनेजमेंट। डेरिवेटिव किसके लिए यूज होते हैं? इस रिस्क के लिए ना। बहुत सारे होते हैं डेरिवेटिव्स में, बहुत सारे स्टॉक्स को बनाया जाता है, एक इंडेक्स दिया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर? एवरीवन नो। लिमिट पोटेंशियल लॉस। अगर आपने कोई चीज 100 रुपये पे लिया, अगर आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो दिस द मार्केट, मार्केट 100 से 20 भी आ सकता है, 100 से 30 भी आ सकता है। इवन अगर आप होल्ड कर गए, अगर मतलब एक्सपायरी तक, तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाए हो कि 100 में से हम 20 रुपीज़ लॉस करेंगे, देन यू कैन, जैसे 80 रुपीज़ आएगा, 20 रुपीज़ लॉस आपका होगा, वो एग्जिट कर देगा ऑटोमेटिक। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टॉप लॉस। who is a bear in the stock market? so स्टॉक मार्केट में बियर कौन है? अगर आप लोगों ने हर्षद मेहता स्कीम देखा होगा 1992 वेब सीरीज जो है, तो आप समझ जाएंगे। प्राइस फॉल प्रिडिक्टर जो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, उनको बोलते हैं कि बियर मार्केट। जैसे अगर हम सीरीज की बात करें तो उसमें वो मनु मुंद्रा, वो बियर मार्केट में थे, बियर मार्केट से पैसा उन्होंने बनाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is what is the significant of an expiry date in option trading? सो सिग्निफिकेंस क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इलीगल वैलिडिटी है, ऑप्शन एक्सरसाइज डेडलाइन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन एक्सपायरी डेट इन ऑप्शन ट्रेडिंग? सो ऑप्शन एक्सरसाइज डेडलाइन, यहाँ पे आपको ऑप्शन बेचना ही बेचना है, अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिक सेटल्ड। सो नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आर्बिट्रेज इन फाइनेंस? so this question you may know, what is arbitrage in finance? arbitrage, what is arbitrage means, ये मैंने बताया होता शायद, NSE में कोई स्टॉक ले लो और BSE में बेच दो। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस। अगर NSE में कोई चीज़ 100 रुपये की चल रही है और BSE में वो चीज़ चल रही है 102 रुपये की, तो आपने एक ह्यूज क्वांटिटी ले लिया, मान लेते हैं 1 लाख क्वांटिटी ले ली है। अब अगर आप ये 2 रुपये का प्राइस वैल्यू है, प्राइस आप 2 रुपये का मार्जिन आप ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 2 लाख का हो जाएगा ना। आप NSE से लिए BSE में बेच दिए, अगर इसमें से चार्जेस कुछ कम कर दो तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा, अगर चार्जेज और सब निकालोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। उसके बाद है व्हाट डज ओपन इंटरेस्ट रिफर टू इन फ्यूचर मार्केट? सो ये बेसिकली आप जब मार्केट में आओगे ना, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, सो वहाँ पे आपको OI बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में OI, ओपन इंटरेस्ट OI। सो कितना कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का, उस पर्टिकुलर पोजीशन का, पर्टिकुलर स्टॉक्स का ओपन है। सो नंबर ऑफ टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप देखते होंगे ना ट्रेडेड वैल्यू मीन्स कॉल साइड बाय साइड, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। सो कितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उसको बोलते हैं कि ओपन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रिस्क इज एसोसिएटेड विद डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स? देखो जो स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वेदांता है, ठीक, जो आपको डिविडेंड देती है। सो इनसे रिस्क क्या एसोसिएटेड होता है? सो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, जैसे अब मैं 2-3 स्टॉक्स के नाम और दे सकता हूँ, बट यू जस्ट सर्च ऑन गूगल डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आल्सो। कोल इंडिया हो गया, आपको ये मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वोलेटिलिटी मेजर्स इन एन एसेट्स रिटर्न? प्राइस वेरिएबिलिटी। देखिए व्हाट डज वोलेटिलिटी मेजर इन एन एसेट्स रिटर्न? प्राइस क्या वेरिएबिलिटी करती है ना, वो आपको वोलेटिलिटी में दिखाता है।
ऑल दीज 20 क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट है। आप एक बार, दो बार, तीन बार इसको एक बार ऐसा देखिएगा ना, जो आंसर है पर्टिकुलर आंसर्स को, क्वेश्चन से आंसर, आप चारों आंसर को मत रटिएगा। आप अगर ये 20 क्वेश्चन में रट लेते हैं, आपको हो सकता है एक दो क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए, आई थिंक मिल ही जाएगा। बट अगर आप देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये मिलेंगी। और इसमें से अगर आप इसका एनालिसिस करोगे क्वेश्चन का, तो आपको प्रैक्टिकली भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। So thank you for this, and we'll meet in next video.